Handloom is our quality. Let's make it identity. A very warm good morning and heartily welcome. We are honored to Mr. Kishore Sarodar sir, owner of Jivaji Handloom Manufacturing and Jagat Ram Bhadkar Management of Khadi Gramodaya and his team. And welcome Ms. Nidhi Jain ma'am, Executive Director and Management Member, IPS Academy, Ms. Poonam Vora ma'am, Director of IFT Department, Ms. Preeti Sarma ma'am, Principal of IFT Department, Mr. Hemant Bandhav sir, HOD of IFT Department and all staff. I, Ranu. And I, Nidhi, welcome you all to the program organized by Institute of Fashion Technology Department, IPS Academy. As you all know, 7th August is National Handloom Day. We all are gathered here to celebrate this day. I would like to call Ms. Priya Tiwari ma'am on stage to give introduction on handloom. Good morning, all of you. I am Priya Tiwari, Assistant Professor of IPS Academy. I'll just tell you a little bit about handloom. The Swadeshi movement, which was launched on 7th August 1905, had encouraged indigenous industries and in particular handloom weavers. In 2015, the Government of India decided to designate the 7th of August every year as the National Handloom Day. The first National Handloom Day was inaugurated on 7th of August 2015 by our Prime Minister Narendra Modi sir at the Century Half of Madras University in Chennai. It was a salute to the weavers and the others in the industry to promote the handloom and a handwoman. Thank you. Thank you, ma'am. Now we will move forward. I would like to invite 4th year students to come on stage and tell us about Handloom of India. Good afternoon, everyone. My name is Kritika Namdev. I am a student of B Design 4th year. Here we are presenting you the handlooms of India. Next. August 7 has been declared National Handloom Day in accordance with country's first Swadeshi movement that was started in 1905 on the same date. The first National Handloom Day was inaugurated by our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji in Chennai. What are handloom fabrics? Handloom are the fabrics made in a handheld loom. It's an age-old technique that weavers use to make fabrics. The loom is usually made of poles, wooden logs and ropes. It takes around 2 to 3 days for a fabric to complete. Next. Okay. Handlooms of East Zone. Apatani, Arunachal Pradesh. The Apatani weave come from the Apatani tribe of Arunachal Pradesh. Its special feature is the fabric of this tribe is known as for its geometric shapes and zigzag patterns. They use different types of zigzags and different patterns in this fabric. You can see them here. Next is Manipur. The traditional costume of Manipur women is fanek. That is a fabric woven by the women of Manipur. Its special feature is it have dark colors like plum, red and chocolate. The fabric ranges between 1000 to 4000 rupees approx. Next. Mizoram. Puans are the traditional fabrics clothing of the native people of Mizoram. There are many kinds of puans and each color signifies different traditional significance. The puandam is a black while its edges are red. This fabric ranges between 1500 to 4000 rupees approx. Next slide. Okay, here is the fabric. You can see the patterns and the motifs they use in this fabric. Meghalaya. Ari silk. It is the most respected fabric of the local tribal people of Meghalaya. They use Ari silk for making this fabric. All the kings and everyday villagers wear that fabric. Motifs like peacock and rose flowers are used. It takes around 4 and more days to complete a Ari silk fabric. It ranges between 5000 to 15,000 rupees approx. Next. Okay, Nagaland. Nagaland is famous for its shawls that are known as Naga shawls.
They have distinctive patterns. They are also known as Chakeshang shawls. Naga shawls are bright red colored and yellow is also used in the fabrics. Its special feature is that animal motifs and different flower motifs are used. The Naga shawls are bright red and black, and sometimes yellow and a bit of blue are also used. The time that is consumed in making this fabric is 2 days. At least 2 days is required to make this fabric. It ranges between 1000 to 15,000 rupees approx. West Bengal. Jamdani is a fine muslin textile produced for centuries in South Rapshi of Narayanganj district in Bangladesh on the bank of Shitlakwa river. The historic production of Jamdani was patronized by imperial warrants of the Mughal emperors. Sometimes Jamdani weaver continue the supplementary weft along the entire length of the fabric to create a pattern and then cut the excess thread with the hand. This is called cutwork Jamdani or extra weft weaving. It takes 9 months to complete a single Jamdani sari. It ranges between 30,000 to 4 lakh approx. Okay. Now I would like to hand over this to Kavita. Handlooms of South Zone, Karnataka, Ilkal Sari. Ilkal Sari have a simple pattern with a gold colored body which may be plain or with checks with contrasting border and pallu, usually in darker color. Common color of the border and pallu are red, blue, dark blue, green, maroon. Body color consists of green, red, black, blue, sometimes yellow. The blue consists of 2 or 3 of white strips. Special feature of Ilkal Sari, the traditional woven with pure silk and gold zari. Price of Ilkal Sari 2,500 to 40,000 approx. Kerala Kasavu Sari. Kasavu is a soft white or off-white handloom cotton cloth with gold thread border. The term Kasavu referred to the zari gold thread used in the border of Kerala Sari. The original Kasavu cloth was made by hand from cotton yarn and the border of golden thread. The white and gold sari are unique due to their natural hues. Price of Kasavu sari approx 2,000 to 10,000. Okay, ma'am. Tamil Nadu, Kanchipuram sari. The unique characteristics of Kanchipuram silk sari include its heavy golden border, traditional design and thick fabric in contrast border color. The tradition that is more than 150 years old is purely hand woven from processed silk yarn and zari, a silver silk thread coated in gold thread. An original Kanchipuram silk sari would cost from 5,000 to 1,50,000. The most expensive sari are the one that are designed using pure zari thread and silk. A special feature of Kanchipuram sari zigzag pattern. The border of the sari comprise of motif from the temples, places and general paintings, and the body includes pyramidical temples design, checks, strips and floral buttas. Price of Kanchipuram sari 10,000 to 30,000 approx. Telangana, Pochampally Ikat, made in a Budhan, Pochampally, Telangana. This double ikat textile is known for its symmetrical pattern and the international bleed. The fabric used is cotton, silk or siko.
which is actually a mix of silk and cotton. Special feature of Pochampalli is known as double ikat and tie and dye. The uniqueness of this fabric lies in the transfer of design and coloring onto warp for weaving them deftly together. Now I would like to hand over to Harshita Kuril. हैंडलूम ऑफ वेस्ट जोन गुजरात पटोला डबल इकत वीव मीनिंग देयर इज़ नो रिवर्स साइड टू इट. पटोला साड़ी में डबल साइड सेम रहता है, वो उल्टे साइड से भी एक जैसा दिखता है और हम इसे दोनों साइड से पहन सकते हैं. इसमें एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन करते हैं, सिल्क यार्न और कॉटन थ्रेड से वीव होता है ये, और इसका प्राइस अप्रॉक्स 1 लाख to 4 लाख होता है क्योंकि इसे बनने में 2 से 3 साल लगता है. गुजरात असावली साड़ी woven silk pattern embedded into the gold surface in mirrored color and known as मीनाकारी. ये सिल्क पैटर्न में गोल्ड जरी से इसमें काम करता है और इसमें पिकॉक, पैरेट, चांद तारा पल्लू इसमें मेन रहता है. पल्लू में बहुत डेकोरेट करते हैं वो लोग, और इसका प्राइस होता है 20,000 to 60,000 अप्रॉक्स. नेक्स्ट गुजरात मशरू हैंड वूवन ऑफ मिक्स ऑफ कॉटन एंड सिल्क इन मल्टी कलर्ड स्ट्रिप्ड इकत पैटर्न. इसमें मल्टी कलर्ड स्ट्रिप पैटर्न में बनती है ये इकत से, जो इसमें सिल्क से फ्रंट साइड में होता है ताकि उससे ग्लॉसी अपीयरेंस दिखे, और बैक साइड में कॉटन से बनता है ताकि वियरर कूल फील करे. इसमें नेचुरल वेजिटेबल डाइज यूज़ होती है और इसका प्राइस है 5,000 to 10,000 अप्रॉक्स. नेक्स्ट गुजरात कच्छ वीविंग. ये शॉल होती है, इसमें वो ज्योमेट्रिक पैटर्न से वीव करते हैं, उसमें षटकोनी, हाथी, धोती ये सारी डिज़ाइंस करते हैं. ये हैवी वेट होती है और इसका प्राइस 5,000 to 10,000 अप्रॉक्स होता है. नेक्स्ट राजस्थान कोटा डोरिया. पहले कोटा डोरिया को कोटा मसूरिया कहा जाता था, अब उसका नाम चेंज होकर कोटा डोरिया हुआ है. इसमें स्मॉल स्क्वायर पैटर्न होते हैं, उसे खाट्स बोलते हैं. पहले ये सिर्फ हेड गियर के लिए यूज़ हुआ करता था, पर अब इसमें साड़ी भी होने लग गई है और दुपट्टा, सलवार कुर्ता सब कुछ अवेलेबल होने लगा है. ये कॉटन और सिल्क से फाइनल प्रोडक्ट बनता है. प्राइस है 2,500 to 20,000 अप्रॉक्स. नेक्स्ट महाराष्ट्र पैठानी वुवन बाय कॉटन एंड सिल्क विथ ऑब्लिक स्क्वायर डिज़ाइन. इसमें कॉटन और सिल्क से स्क्वायर डिज़ाइन पैटर्न, पैरेट, पिकॉक डिज़ाइन होती है. इसमें बुद्धिस्ट पेंटिंग्स भी वीव करते हैं वो, और इसमें ट्रेडिशनल कलर्स होते हैं जैसे फिरोज़ी, गुजारी, मिरानी, मोटिया एक्सेट्रा. इसमें बॉर्डर मेन रहती है, उसमें गोल्ड जरी का वर्क होता है और ये बहुत हैवी साड़ी होती है. इसका प्राइस है 25,000 to 3 लाख अप्रॉक्स. नेक्स्ट महाराष्ट्र खन्ना साड़ी. इसमें ज्योमेट्रिक हनीकॉम पैटर्न होते हैं और ये सिल्क से बनता है. ये बहुत हिस्टोरिकल फैब्रिक है. इसका प्राइस है 2,000 to 6,000 अप्रॉक्स. Maharashtra Narayan Pethi sari. The sari have a design with embroidery, ethnic design in border and pallu for contrasted look. इसमें बॉर्डर मेन रहती है, बॉर्डर में हैवी वर्क होता है एम्ब्रॉयडरी के साथ में, और पल्लू में कॉन्ट्रास्टिंग लुक के साथ में इसे वीव करा जाता है. फ्लोरल और एनिमल डिज़ाइंस रहती हैं, सिल्क से बनती है. इसका प्राइस है 2,000 to 10,000 अप्रॉक्स.
मध्य प्रदेश महेश्वरी साड़ी। महेश्वरी साड़ी का टेक्सचर सॉफ्ट होता है। ये समर में पहनने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। इसे 3 to 10 डेज़ बनने में लगते हैं। इसमें चमेली, स्वैन ये सब एम्बोस्ड होते हैं और इसमें जो बॉर्डर होती है वो रिवर्सिबल होती है और जो पल्लू में 5 स्ट्रिप्स रहते हैं। इसका प्राइस है 2000 to 10,000 अप्रॉक्स। चंदेरी साड़ी ये लाइट वेट होती है और ये ग्लॉसी और ट्रांसपेरेंट टेक्सचर होता है। इसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं, ट्रेडिशनल कॉइन्स होती है और इसमें जो जरी होती है वो गोल्ड और सिल्वर से होती है, फाइन सिल्क से। ये सिल्क और कॉटन दोनों मिक्स फेमस है। इसका प्राइस है 2000 to 25,000 अप्रॉक्स। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ बुनकारी साड़ी। ये कोसा और तसर सिल्क से बनती है। इसमें गोल्डन कलर से इसमें होता है और इसका गुड टेक्सचर होता है। इसमें ट्राइबल पेंटिंग्स, ह्यूमन फिगर्स, एनिमल और पॉपुलर मोटिव्स डिज़ाइंस होते हैं। इसका प्राइस है 1000 to 6,000 अप्रॉक्स। नेक्स्ट नाउ आई वुड लाइक टू कॉल कृति फॉर फर्दर। हैंडलूम्स ऑफ नोट जोन। जम्मू एंड कश्मीर पश्मीना शॉल्स। पश्मीना शॉल बनाई जाती है कैशमीर वुल से, जो कि बहुत ज़्यादा फाइन होता है। ये लद्दाख की गोट से मंगाया जाता है अब ये फाइबर से बनाई हुई शॉल को बनाने के लिए उन्हें टाइम लगता है। 12 to 15 डेज़ मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं एक शॉल कंप्लीट करने के लिए। द वुल इज़ डेलिकेट, फाइन, एक्सेप्शनली वार्म। ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। प्राइस रेंज इसकी होती है 12,000 से 40,000 के अराउंड में। हिमाचल प्रदेश कुल्लू शॉल्स। हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट है कुल्लू शॉल्स, जो कि हैंड वुवन होती है। इसमें डिफरेंट कलर्स यूज़ किए जाते हैं। इसमें वुल भी 3 टाइप्स का यूज़ होता है। पहला होता है मेरिनो वुल, अंगोरा वुल एंड लास्ट इज़ लोकल शेप वुल। ये मैन और वुमेन दोनों के लिए यूज़ की जाती है। इसमें बहुत सिंपल पैटर्न्स बनाए जाते हैं, बॉर्डर्स में यूज़ करते हैं इसे। और इसका फीचर यही होता है कि इसमें मल्टी कलर के स्ट्रॉन्ग जियोमेट्रिकल पैटर्न्स बने होते हैं, जो कि वुलन यार्न्स के साथ वीव किए जाते हैं। 2 से 3 शॉल एक दिन में बनाई जाती है ये वाली, या अगर कोई इंट्रिकेट डिज़ाइन होता है तो उसे बनाने में 2 से 3 दिन लगते हैं मिनिमम। इसका प्राइस रेंज होता है 800 से 10,000 के बिटवीन। कुल्लू शॉल्स। हरियाणा पंजादरी। Known for a rich handloom tradition, the town of Panipat in Haryana produces पंजा। पंजाब के हरियाणा के पानीपत टाउन में ये बनाए जाते हैं। इट इज़ प्राइमरीली यूज्ड फॉर दरीज, रग्स एंड अदर फ्लोर कवरिंग्स। ये फ्लोर कवरिंग्स में ही वीविंग की जाती है। इसमें हरियाणा के ऑलमोस्ट सारे ही विलेज ये काम करते हैं। इसका फीचर होता है कि इसमें जो एक टूल यूज़ किया जाता है उसे पंजा कहते हैं, इसीलिए इस क्राफ्ट का नाम पंजा डरीज है। इसका टाइम कंजम्पशन होता है एक 5 फीट बाय 3 फीट की दरी को बनाने के लिए। इसमें 15 डेज़ रिक्वायर्ड होते हैं। प्राइस रेंज होता है 800 से 18,000। उत्तर प्रदेश बनारसी साड़ी। इंडिया में माना जाता है बनारसी बहुत ही ज़्यादा इंट्रिकेट क्राफ्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ीज़ होती है ये। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ यार्न्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे नॉर्मल थ्रेड्स होते हैं वैसे नहीं, इसमें सिल्वर, मीनाकारी या फिर एक्सपेंसिव थ्रेड्स यूज़ करते हैं, जिसके कारण इसकी प्राइस भी ज़्यादा होती है और इसे बनाने में बहुत टाइम भी लगता है। इसका स्पेशल फीचर होता है इसमें बहुत ही ज़्यादा इंट्रिकेट इंटरवीविंग होती है, फ्लावर वाले मोटिव्स होते हैं, बेल एंड अपराइट लीव्स कॉल्ड झालर एट द आउटर एज ऑफ बॉर्डर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस साड़ीज़। इन साड़ीज़ में बॉर्डर्स बनी होती है जो बहुत ही ज़्यादा इंट्रिकेट होती है। सिंपल साड़ी बनाने में 15 डेज़ लगते हैं मिनिमम, और अगर वो डिज़ाइन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो उसे बनने में लगते हैं 2 से 3 महीने। प्राइस रेंज होती है, थ्रेड से बनता है अगर वो क्राफ्ट तो होगा 12,000 से 20,000। अगर उसमें मीनाकारी का यूज़ है तो 1800 से 50,000 उसका प्राइस रेंज होता है। सिल्वर थ्रेड यूज़ किया है तो 45,000 से अबव, एंड गोल्ड के लिए 5 लाख से अबव होता है।
Thank you. Thank you, seniors, for explaining the handlooms of India. Now, I would like to invite IFT students to represent different handlooms of India through fashion work and slogan work. फुल बिछप ना जाओ जी मन दीद कराओ जी रा क्यों तरसावे हो मन सकल दिखाओ जी थारी शरारत सब जानू मैं तो धरी हर चले उन्हें बंगा दी मैं कह लगे मर किबड़े में जागी धोकड़ी चंदा में थारी चांदनी मन दामन में पारी खुशी रे झुम 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 ओ मेरे जीवरे में जागी धोकड़ी चंदा में थारी चांदनी मन दामन में पारी खुशी रे झुम 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 जागी धोकड़ी चंदा में थारी चांदनी मन दामन में बागी खुशी झुम 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 हमारे जीवन में जागी धोकड़ी चंदा में थारी चांदनी मन दामन में बागी खुशी झुम 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 पंगा दी मैं का लगी अरे बड़े में जागी धोकड़ी चंदा में थारी चांदनी मन दामन में बाती खुशी झुम 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 हमारे बड़े में जागी धोकड़ी चंदा में थारी चांदनी मन दामन में बाती खुशी झुम 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 जाओ जी मन दीद कराओ जी क्यों तरसावे हो मन सकल दिखाओ जी हरी जरूरत सब जानू मैं चौधरी रंग सो कोई
सोनो नहीं जग में, थारे रूप रंग सो कोई सोनो नहीं जग में। अरे अला बनाओ नादान बनाओ, अरे अला बनाओ नादान बनाओ। मैं सूती बादल महल बनी ने क्यों जगानियो, मैं सूती बादल महल बनी ने क्यों जगानियो। एक तू ही जाने थारी प्रीत बसी रग रग में, एक तू ही जाने थारी प्रीत बसी रग रग में। सावनियो बह जावे झरझर, यादा जग माने थारी आवे। जो दाने गयो ए नादान बनिए, जो दाने गयो ए नादान बनिए। तन पहनन की चतराई बनी मैं मोजरी लायो ए, तन पहनन की चतराई बनी मैं जुती लायो ए। अरे अला बनाओ नादान बनाओ, अरे अला बनाओ नादान बनाओ। मैं सूती बादल महल बनी ने क्यों जगानियो, मैं सूती बादल महल बनी ने क्यों जगानियो। मैं सूती बादल महल बनी ने क्यों जगानियो, मैं सूती बादल महल बनी ने क्यों जगानियो। Now I would like to invite IFT students for slogan walk. में संभावना आता हमें है देखना, विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्व को पहला मिला। शल्य सुश्रुत प्रदान है, दुनिया के लिए वरदान है। जग को हमने ही सिखाया वसुधैव कुटुंबकम। आत्मनिर्भर हम बोलो वंदे मातरम, हमसे बेहतर हम बोलो वंदे मातरम। योग राम बाण है, सदियों का ये ज्ञान है। ताज अपना ताजमहल। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ मिस पूनम वोहरा मैम, डायरेक्टर ऑफ IFT डिपार्टमेंट। आप आए और सम्मानित करें मिस्टर किशोर सरोदे सर, ओनर ऑफ जीवाजी हैंडलूम फैब्रिक। प्लीज़ वेलकम ऑन द स्टेज। द जर्नी ऑफ IPS बैग। यह अत्यंत खुशी की बात है कि यह हैंडलूम बैग बनाने के कंसेप्ट को पूर्ण रूप से IFT IPS के द्वारा किया गया है। कपड़ों की बुनाई से लेकर उसे फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक का सफ़र बच्चों ने ही तय किया है।
करना चाहती हूँ मिस्टर हेमंत बांधव सर, HOD ऑफ IFT डिपार्टमेंट। आप आए और सम्मानित करें मिस्टर जगतराम भागटकर सर, मैनेजर ऑफ खादी ग्राम उद्योग। प्लीज़ वेलकम ऑन द स्टेज। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ मिस्टर किशोर सरोदे सर को, आए और अपनी जर्नी के बारे में बताएं। प्लीज़ कम। हैंडलूम को हमने वार्पिंग वगैरह पे लेकर के उसको कपड़ा बनाना कैसा बनाते हैं, उसको कैसे बॉबिन्स भरते हैं, बॉबिन भर के उसको कैसे चलाया जाता है, ये सब हमने सिखाया इन लोगों को। और इन्होंने फिर अभी कपड़ा बनाना चालू करा और ये हम करीबन 40 वर्ष से कर रहे हैं। मुझे खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में करीब मेरा नाम जगतराम भागड़कर, मैं खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का एम्प्लॉयमेंट हूँ और करीबन मुझे 40 साल हो गए इस स्पिनिंग का काम देखते हुए। बचपन से मैंने टेप से पोनी बनाना, धागा बनाना, ये सब काम किया और बैतूल ट्रेनिंग सेंटर में मैंने स्पिनिंग का ट्रेनिंग 1 साल का डिप्लोमा किया है। उसके बाद मेरा जर्नी ये रहा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि खादी ग्रामोद्योग में नौकरी मिलना चाहिए। जो जिस चीज़ को मैंने सीखा बचपन से वही काम मुझे मिला और मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे स्पिनिंग वीविंग का करीब 8-9 साल तक चला वहाँ पे। तो उसका मैं टीचर रहा स्पिनिंग का और यही मेरी जर्नी रहा और अभी 2 साल बचे रिटायरमेंट। ठीक। मैं जय सरोदे, आई लिव इन सुखलिया ग्राम इंदौर। मैंने हैंडलूम्स को करीब 8 वर्ष का था जब से मैंने हैंडलूम स्टार्ट किया है और मैंने सीखा है, स्टार्टिंग में मैंने सीखा है जब नए बीम कैसे बनाया जाता है, धागे को कैसे बुना जाता है, धागा भरा कैसे जाता है, ये सारी चीज़ें सीखी है। उसके बाद में फिर हम धीरे धीरे डिज़ाइनिंग पे आए। जब मैं छोटा था, जब हमारे यहाँ पे कंबल बनते थे, कुछ जेल सप्लाई के कंबल बनते थे, कुछ प्राइवेट ब्लेज़र बनते थे और तरह तरह की वैरायटियाँ बनने को देखने को मिली और काफ़ी बुनकर्स को हमने तैयार भी करा है जो आज काफ़ी अच्छा कपड़ा बुन लेते हैं। और आज हम करीब एक्सपीरियंस होते आज हम मसलिन खादी बनाने लग गए। मसलिन खादी बोले तो काफ़ी महीन धागा होता है जो साड़ियों के यूज़ में आता है, जो 200 काउंट 150 काउंट जिसकी साड़ी का वज़न देखा जाए तो 300-400 ग्राम होता है। वो साड़ी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और अभी जनरली लेटेस्ट 1 मंथ में हमने उसकी स्टार्टिंग की है और धीरे धीरे हम चाहते हैं कि सभी को इसमें रोज़गार मिले। जो भी बुनकर इसको सीखना चाहते हैं, जो भी नए युवा इसमें आना चाहते हैं, हम उसको सिखाना चाहते हैं और काफ़ी नए तरीके की तकनीक इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिनके लिए हम मैडम्स का सहयोग लेंगे और हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर और हम चाहते हैं कि कुछ नया बनाए। All handloom sarees and dupattas are sponsored by Assistant Professor Ms. Meena Verma ma'am of IFT department. Thank you so much ma'am. I would like to invite the Preeti Sarma ma'am, principal of IFT department for thank you word. सभी को नमस्कार। यहाँ आने के लिए किशोर सरोदे सर, हमारे खादी ग्रामोद्योग के मैनेजर सर और उनकी पूरी टीम, पूनम बोरा मैम, निधि जैन मैम और हमारे JSS के बच्चे, आरती मैडम और हमारे IFT के बच्चे, सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने बहुत अच्छा स्टूडेंट्स ने प्रोग्राम किया और बाकी सब आगे बोलने के पहले मैं एक थोड़ा सरप्राइज़ दूँ। आज की जो हमारे साड़ीज़ थी और ये जो शो में रंग जम पाया, इसकी मुख्य सूत्रधार हमारी मीना वर्मा मैम थी, तो हम उन्हें सम्मानित करना चाहेंगे। हमारे कोरियोग्राफर कौन थे? थैंक यू सो मच, शी जस्ट रॉक्ड, कम हियर।
एक दिन की प्रिपरेशन में बच्चों ने ये शो किया, हमने पूरा उन पे छोड़ दिया था कि सब आपको ही करना है। इस बार हमने कुछ नहीं किया, सब कुछ बच्चों ने किया। तो ये हमारी आज की कोरियोग्राफर हैं अश्विनी, जो बी डिज़ाइन 4th ईयर की स्टूडेंट हैं। अब 4 साल कोर्स करने के बाद बच्चे को कितना वो ट्रेंड हो जाता है, ये आपके सामने है। सो थैंक यू सो मच अश्विनी, थैंक यू सो मच। अब पीपीटी जिन बच्चों ने बनाई वो प्लीज़ आ जाएं, 4th ईयर एंड उसमें जिसने हेल्प की हो, 4th ईयर के स्टूडेंट्स, कृतिका, कविता, हर्षिता, ज्योति, जिन्होंने भी हेल्प की हो पीपीटी बनाने में, सबको पता तो चले कि किसने कितना प्रयास किया है। ये सब बच्चे थे जिन्होंने, आपने जो प्रेजेंटेशन हैंडलूम्स कौन से होते हैं इंडिया के, वो जो प्रेजेंटेशन देखा उसमें बहुत मेहनत थी, इन्होंने उसको तैयार किया था। तो थैंक यू सो मच टू ऑल, यू जस्ट रॉक, थैंक यू। और एक नाम जो अभी दिख नहीं रहा है पर उनका बहुत सारा सपोर्ट है इसमें। पीपीटी बनाने का आइडिया हम लोग का था, पर उसमें जोन वाइज उसको डिवाइड करना और बच्चों को जोन वाइज डिवाइड करके जिन्होंने ये आइडिया दिया वो है हमारी IFT की डायरेक्टर निक्की जैन मैम। जस्ट क्लैप फॉर हर। जो आपने वीडियो देखा बैग की जो जर्नी थी, बैग जो हमने लॉन्च किया, बेसिकली उसमें बहुत सारी स्टोरी है। बच्चे सर इंटर्नशिप पर जाते हैं, वहाँ पर अपने हस्तकरघा संचालनालय में, डायरेक्टरेट्स ऑफ हैंडलूम, गवर्नमेंट ऑफ MP, वहाँ पर 3 महीने की इंटर्नशिप पर जाते हैं। वहाँ पर कपड़ा बनाना सीखते हैं। वो कपड़ा इसमें यूज़ हुआ है, सारा उन्होंने बनाया है, ये तो मैं नहीं कहूँगी, पर उन्होंने इसमें बनाया है। उसके बाद उसका डिज़ाइनिंग पूरा फैशन डिपार्टमेंट ने किया है, वो कई लेवल पे अप्रूव हुआ। उसके बाद उसका हम लोगों ने स्पेक शीट्स बनाई उसकी कि क्या उसके स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए। हमारे 4th ईयर के स्टूडेंट्स कृतिका ने उसकी ड्राइंग्स बनाई और उसके बाद हमने उसका हेमंत सर ने किसी प्रोडक्शन वाले उसको बुलाया इंडस्ट्री को, उनको हमने समझाया और उनसे थोड़ी हेल्प ली कटिंग वगैरह में। और सिलाई हमारे जो जन शिक्षण संस्थान के बच्चे हैं वो कर रहे हैं, कल से स्टार्ट किया है। अभी कुछ ही बैग बने हैं, बाकी पूरी सिलाई वो भी करेंगे और इंडस्ट्री में भी बनेगा, क्योंकि बहुत सारे बैग्स हैं। ये हमेशा के लिए IPS में चलेगा, जो कि गेस्ट्स को भी दिया जाएगा और जो भी यहाँ पर विजिटर्स होते हैं या उनके लिए ये बैग बना है। इसमें हैंडलूम इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए हमने स्लोगन राइटिंग कंपटीशन बच्चों के बीच रखा था और जो बेस्ट स्लोगन आया वो हमने इस पर प्रिंट किया है। उसको IPS से भी लिंक किया, जैसे कि हमने लिखा उसमें कि वीव योर ड्रीम्स विद अस, मतलब अपने सपनों को IPS में बुनिए, ऐसा कुछ स्लोगन किया है उसमें। और फिर मैनेजमेंट के लेवल पर वो अप्रूव हुआ और उसके बाद अब वो प्रोडक्शन में गया है, थोड़ा बना है, थोड़ा बन रहा है। सो दिस वाज द जर्नी विच वी शोन थ्रू अ वीडियो and I thank you once again. I thank you to all the staff members, Priya, Rupali ma'am and Sheetal ma'am, to support in this program. Thank you so much to all, one and all. If I have missed someone, that is not intentional, so forgive me for that. Thank you so much. So you have made very good program within very short span of time and we were very short of students also. एज यू नो कि जो बच्चा रैम्प पे है वही एंकरिंग भी कर रहा है, इतनी हमारी मजबूरी हो गई थी क्योंकि बच्चे एग्ज़ाम अनाउंस होने के कारण बहुत कम थे। सभी वीवर्स को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही ने ये कपड़ा बुना तभी ये शो हो पाया है और आप आगे भी हमारा ऐसे ही सहयोग करते रहें। आगे की जो चर्चा है वो हम अपने डिपार्टमेंट में करेंगे कि अब से कैसे आपसे लिंकेज बनाए रखा जाए। और बच्चों, आप सर को सपोर्ट जो करेंगे उनको डिज़ाइंस और उसमें सपोर्ट करेंगे। कोई इंटरेस्टेड है इसमें कि डिज़ाइंस कैसे बनाए जाए, कौन से कलर के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन बनाया जाए, इसके लिए आप सोचिएगा, रूपाली मैम से बात करिएगा। और इसी के साथ हम आज के प्रोग्राम को समाप्त करें, अगर आज्ञा हो सब डिग्निटरीज़ की। तो अब मैं इनवाइट करूँगी पूनम मैम को कि वो हमें थोड़ा सा उत्साहवर्धन करें। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आप लोगों को पूरा की पूरा कार्यक्रम में, क्या सीखा आप लोगों ने? आई थिंक यहाँ हमारे सारे फैशन के बच्चे हैं, JSS और फैशन के हैं।
यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मेरा बहुत सादर प्रणाम और आप लोगों के समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, मुझे ऐसा लगा ये पूरे सेशन से हमें बहुत सारे इंस्पिरेशंस मिले हैं एंड हम जब फील्ड के लोगों से जो 40 सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे हम मिलते हैं तो हमेशा एक नई ऊर्जा का प्रसारण होता है, लाइक अपने अंदर वो प्रसारित होती है। उस ऊर्जा को हमें ग्रो करना है। वी हैव टू कम आउट विद समथिंग गुड इन आवर लाइफ। दैट इज़ वॉट वी आर लर्निंग ऑल्सो, राइट? सो इनके साथ मिल के हम कुछ अगर नई चीज़ कर सकते हैं तो वो हम सबके लिए बहुत अच्छी रहेगी, हमारा फ्यूचर, और आप लोग हमारे देश का फ्यूचर हो। तो आपकी सोच से हमारा देश एक विश्व में स्थान प्राप्त करता है। हैंडलूम हमारी धरोहर है जो आज की तारीख में, बिकॉज वी नो वी हैव बीन थ्रू अ टफ पीरियड इन लास्ट 2-3 years, सस्टेनेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सस्टेनेबिलिटी मतलब जो कपड़ा अपन रिसाइकिल कर सकते हो, ऐसा कपड़ा हैंडलूम होता है। तो जब हम हैंडलूम पे अपना ध्यान लगाएंगे और उसमें अच्छी अच्छी चीज़ों की खोज करेंगे तो हम हमारे प्लैनेट के लिए भी काम कर रहे हैं, ना कि हमारे देश के लिए। तो जब हमारे प्लैनेट, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, I think we should work for everything around us as a good human. So as a designer, as a human, we should work on these things. I think this is one of the very prospective thing which should come up now. ठीक है? Thank you so much for your time. Thank you so much, ma'am, for your wonderful thoughts. You inspired us. Now I would invite Nidhi Jain, ma'am, our Executive Director of IPS Academy, to kindly enlighten us with her words of wisdom. Thank you so much. हेलो, नमस्कार। मैं आए हुए अतिथियों का स्वागत करती हूँ और जितने भी यहाँ के फैशंस के जो डिपार्टमेंट के स्टाफ, स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का तो मतलब क्या बोलूँ, यू रॉक, मतलब इतना ज़्यादा सबकी मेहनत है। मैं यही चाहूँगी कि ये चीज़ें जो हैं इनसे एसोसिएशन बना के इनको आगे बढ़ावा दिया जाए। और मैम, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम आपके साथ हैं, आप जो बोलेंगे उस हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है? तो जस्ट शाइन ऑन, नॉट टुडे बट एवरी डे। ओके, बाय, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम।